And now we go to the other book, which is The Game of Life and How to Play It by Florence Scovel Shinn. Yes, Gunjit ma'am will be reading for us today. And yes, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है. मैम प्लीज रीड फ्रॉम दिस कोट. वॉर्न का जो ये कोट है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ब्यूटिफुल कोट इट इज. क्रिएट योर फ्यूचर फ्रॉम योर फ्यूचर, नॉट योर पास्ट. दिस मीन्स दैट बेंटिनो मसारो की यहाँ पर बात आती, ही ऑलवेज एम्फेसाइज्ड अस ऑन लिविंग इन फ्यूचर प्रेजेंस, that we have to live in future presence instead of dwelling in the past. जो past में जो हुआ उनके miseries में dwell करने से अच्छा होता है that we stay in the future presence. We always stay in the mode of a creator, always sit in the chair of a creator, then only we'll be able to create the life as we want, you know. This is very important for us. डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी इस बात को एम्फेसाइज करते हैं. डॉक्टर जो डिस्पेंसा ने कहा है रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब उन्होंने बताया रीमाइंड. रीमाइंड, अगर आप अपने आप को पास्ट में जाके व्हेन यू आर विजिटिंग दोस पेनफुल मोमेंट्स, देन यू आर रीमाइंडिंग योरसेल्फ अबाउट ऑल दोस मोमेंट्स. बट इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द पास्ट, you have to look what you want in the future and whether your actions are according to that or not. So create your future from your future. Very important this is. So यहाँ पर हम लोगों, what we are reading is about the denial and affirmations. So whenever we are going to start a new project or start anything, सबसे पहले human mind is going towards the negativity. पता नहीं होगा कि नहीं होगा. So denial को हम लोगों ने affirm करके, उसको हम लोगों ने affirmations को positive word में, positive sentence में convert करके we are affirming that. This is what यहाँ पर फ्लोरेंस कॉवल्शन इसी चीज को emphasize कर रही हैं कि whenever a denial comes in front of you, there is always an affirmation associated with. You just have to lift at, you just have to flip it off, because energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed. So to transform your negativity into positivity, it is just your effort, that your presence of mind and your staying in the future presence will do it all for you, right? So yes, Kunjit ma'am, please start reading for me. Okay, yes ma'am, please do. Please start. Yeah. Many stories from here, ma'am. या आप यहाँ से पढ़िए. मैं चाह रही थी ना आप ये वाला कोट भी पढ़ें, बहुत प्यारा कोट है ये. हाँ जी. Create your future from your future, not your past. Werner Erhard. Many stories are told of the power of the subconscious when directed in faith. For example, a man was spending the night in a farmhouse. The windows of the room had been nailed down, and in the middle of the night he felt suffocated and made his way in the dark to the window. He could not open it, so he smashed the pane with his fist, drew in draughts of fine fresh air, and had a wonderful night's sleep. The next morning he found he had smashed the glass of a bookcase, and the window had remained closed during the whole night. He had supplied himself with oxygen simply by his thought of oxygen. When a student starts out to demonstrate, he should never turn back. Let not that man who wavers think that he shall receive anything of the Lord. Just a A moment, cul- ma'am. Just a moment. So ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा, that person was in a farm house and he was feeling suffocated at night. रात को उसको suffocation हो रही थी, तो he just tried and opened a window for himself. इसको लग रहा था अंधेरा था, there was nothing. तो उससे ना वो इतना ज्यादा strongly वो बंद था, तो उसको लगा कि वो खुल ही नहीं रहा था. It was nailed. उसको लगा कि स्क्रू कर रखा है, वो खुलेगा ही नहीं. Then he just smashed the window. उन्होंने स्मैश किया, उनको लगा कि भाई मुझे तो ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे फ्रेश एयर की जरूरत है, तो उन्होंने इसको तोड़ा. एंड देन ही स्लेप्ट नाइसली, क्योंकि उनको लगा कि हाँ अभी विंडो टूट गया है तो फ्रेश एयर विल बी कमिंग इन एंड आई विल बी हैप्पी, आई विल बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. देन वो सो गए आराम से, बिल्कुल उनको तकलीफ नहीं हुई कोई. अगले मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तब उन्होंने क्या नोटिस किया, इट वॉज जस्ट अ बुक शेल्फ सॉर्ट ऑफ थिंग. एक बुक केस था, वो खिड़की नहीं थी. इट वॉज जस्ट द हाउस और द रूम, इट वॉज जस्ट लाइक दैट. वो खिड़की थी ही नहीं. उन्होंने तो शीशा किसका तोड़ा था, उन्होंने शीशा तो एक बुक रैक का तोड़ा था.
तो वहां से मतलब इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ. ही फेल्ट सो ऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आई, उसको लगा कि मैंने, क्योंकि वो इट इज ऑल इन हेड, नो. वट एवर you have in your head, you will have in your life. This is very important to have that success wala mindset. This is important to have the surrendering to the universe. कि आपको अगर ये पता है ना, by default you know that whenever you are going somewhere, universe is there with you, universe will take care of everything. You do not have to spend your head on constructing the things for you. Universe will construct it for you. अदरवाइज कमरा सारा बंद है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हो जाता है तो यू कैन नॉट ब्रीथ. बट दैट पर्सन न्यू दैट आई हैव ब्रोकन द विंडो, तो मेरे पास एयर जो है आराम से अपने आप आ जाएगी, एंड वो अपने आप सो गया आराम से. दिस इज द पावर ऑफ फेथ, एंड दिस इज इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि उन्होंने तब प्रे किया था. उन्होंने प्रे नहीं किया था, वो उनका बिलीव था. So it is always about your belief. What is your belief? Your belief is the only deterrent in your success. If your mindset is like that, that I will be going there and universe is there with me, it will make out everything so easy and effortless for me. So affirmation जो है आपकी कोई काम है, जैसे कल वाले टेक्स्ट में हमने पढ़ा था, affirmation आपके लिए काम नहीं करता. affirmation तो उस चीज के लिए होता है ना, कि जब you are continuously or invoking yourself, बार बार आप रिपीट करके उसको अपने माइंड में सेट कर रहे हो. But when you are aligned, that you know कि universe is there with me all the time, then there is no need to affirm also, because आपने एक बार बोल दिया, आप alignment में हो, universe आपके साथ है. By default, universe is always there with us. We just have to pay gratitude to get those all things in our life, है ना? Yes, ma'am. Please go on. A colored student once made this wonderful statement. When I ask the Father for anything, I puts my foot down and I say, Father, I'll take nothing less than I've asked for, but more. So man should never compromise. Having done all, stand. This is sometimes the most difficult time of demonstrating. The temptation comes to give up, to turn back, to compromise. He also serves who only stands and waits. सी दिस इज सो इम्पोर्टेंट. इतना प्यारा ये इंसिडेंस है. ये कलर्ड मैन का मतलब जो ब्लैक्स होते हैं ना, उनको कलर्ड बोला जाता है. तो जो भी जिस भी तरह का वो पर्सन होगा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ना, आई पुट्स माई फुट डाउन, क्योंकि उनकी इंग्लिश ऐसी होती है ना थोड़ी, इसलिए उसको ऐसे लिखा हुआ, आई पुट्स माई फुट डाउन. तो इसमें क्या था, इस बच्चे को फेथ था कि मैंने जो बोल दिया मेरे पास तो वो आएगा ही आएगा. आई विल नॉट सेटिस्फाई विद एनीथिंग लेस. आई हैव टू सेटिस्फाई माई सेल्फ विद वट एवर आई वॉन्ट. यू हैव टू गिव मी. आपको देना ही पड़ेगा. एंड आपने जब दिया, इट कैन बी मोर. मोर तो मैं ले लूंगा, ज्यादा तो मैं ले लूंगा, पर कम से काम नहीं चलेगा मेरा. तो द सेम वे वी हैव अ वेरी वंडरफुल स्टोरी इन आवर हरियाणा ऑल्सो. देयर वॉज अ गर्ल, बहुत प्यारी सी बच्ची थी वो. उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे. तो एक बार उसके पेरेंट्स जो बाहर गए थे, उनके पेरेंट्स कहीं जाना था, खेत में जाना था, जो भी कुछ करने जाना था, तो वो कृष्ण भगवान को मानते होंगे, तो उनको भोग लगाते थे वो, कि भाई बेटा तूने जो ना ये भगवान को भोग लगाना, भगवान को खाना खिलाना है तूने. तो उन्होंने अपने बच्चे को ये बोला, तूने भगवान को खाना खिलाना है. तो उस बच्ची ने सोचा कि ठीक है, मैं खाना खिला दूंगी उनको. तो वो तो बच्ची थी, उसको तो पता ही नहीं था क्या है. तो उसके पापा तो चले गए, तो उन्होंने ना वो प्रसाद का जो प्लेट होता है वो भगवान के सामने रख दिया. दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ. यू मस्ट लिसन टू इट. उन्होंने वो प्लेट भगवान के सामने रख दिया. अब हम लोगों को तो सबको पता है भगवान खाते थोड़ी हैं, वो तो हम लोग ही खाते हैं ना. भगवान के सामने जो भी रखना होता है वो तो हम ही खाते हैं, भगवान थोड़ी ना खाता है. बट उस बच्ची को नहीं पता था. उस बच्ची ने देखा, यार इतनी देर से वो प्लेट रखी हुई है, भगवान खा ही नहीं रहा, कोई खा ही नहीं रहा, वो एम्प्टी ही नहीं हो रहा, वो एम्प्टी ही नहीं हो रहा. शी वाज सो, उन्होंने वो ना डंडा लेकर बैठ गई वहां पर. उन्होंने कहा भगवान आप आ क्यों नहीं रहे, आप खा क्यों नहीं रहे, मतलब आपको खाना पड़ेगा वरना मेरे पापा आके मुझे डांट मारेंगे, आपको खाना पड़ेगा. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो खाना खत्म हो गया अपने आप. This is a story, and this is a true story. This is the power of belief. When you know that universe is there for you, you have to surrender. You have to say that universe, I believe that you will. उस बच्चे को पता नहीं था ना, she was बच्चा. She didn't know कि भाई वो सच्चाई क्या है, भगवान खाते थोड़ी हम ही खाने वाले होते हैं. बट उनके कारण भगवान को भी उस चीज को वहां से हटाना पड़ा. दिस इज द पावर ऑफ बिलीव. दिस इज द स्टोरी. आई डोंट नो कि मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है, बट यहाँ पर वो क्वेश्चन, वो वाला जो स्टोरी है, इतनी अच्छी तरह से फिट होता है ना, कि दिस इज द पावर ऑफ बिलीव. आई विल नॉट सेटल डाउन इन एनीथिंग लेस. आई वॉन्ट दिस. दिस इज माई थिंग. यू समटाइम्स हैव टू
कमांड द यूनिवर्स, यूनिवर्स आई वांट दिस। सो दिस इज द थिंग। एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लेडी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, डिक्स, DICC, है ना, DICC, मतलब डी फॉर डायरेक्ट, डायरेक्ट द यूनिवर्स, दैट यूनिवर्स आई वांट दिस, declare to the universe, universe I want this. So D stands for declaration and direction. Then comes I stands for instruction. You instruct the universe, that universe I want this, I want this to be done, and I do not know how will you, how that thing will come into my life, but I want it. So आपने वो instruction दिया universe को. Then C comes for coding, कि यू आर एनकोडिंग द यूनिवर्स, यू आर गिविंग हिम कोड, कि कोड मेरा होगा, बताऊंगी मैं कि मुझे क्या चाहिए, आपने मुझे उसको देना ही पड़ेगा. सो दिस इज द थिंग, यू नो, व्हेन यू हैव दिस कोड करा आपने, एंड देन कमांड करा, DICC. तो सी फॉर द नेक्स्ट, सी स्टैंड्स फॉर कमांडिंग. कमांड किया आपने, दैट यूनिवर्स दिस इज माय कमांड एंड यू हैव टू फुलफिल दिस. यूनिवर्स आप मुझे उससे ज्यादा दे दो, पर मुझे उससे कम में तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा. दिस इज द काइंड ऑफ फेथ एंड बिलीव दैट वी मस्ट हैव. पेशेंस जो है हम लोग रखते हैं ना, पेशेंस रखो, आपके पास जरूर आएगा, बट पेशेंस हैज टू बी followed. You know, when universe will give everything to you, but you must have that feeling also. ऐसा नहीं है कि you are waiting for your dreams to get fulfilled and you are becoming impatient about it. No. इम्पेशेंट अगर होना, पेशेंस में रख रही हूं, लेकिन पेशेंस के साथ साथ अगर मैं डिप डाउन कर रही हूं, मेरी फीलिंग फ्रीक्वेंसी अगर ठीक नहीं है, तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि दैट इज डेस्परेशन. There is a thin line between the patience and desperation. Desperation is something when you do not have any surrender power. You know, आपने surrender किया and you are getting desperate. जब आप किसी चीज के लिए desperate होते हो, that means that you are invoking the feeling of lack into the universe. So when you are invoking the feeling of lack, universe will give you lack only. Do not get desperate about anything. Do not get desperate about any of your dream. Have perseverance in your mind that no, I have prayed for it. Universe is with me. I am taking the inspired action. Universe is always going to deliver me. Right? We must have this surrender thing. Patience has to be done. Patience आप कर रहे हो, लेकिन patience के साथ साथ you must be keeping yourself above the line. बिलो द लाइन हम लोगों ने कोशिश करना है कि हम लोग ना जाएं, हम लोग अबव द लाइन ही रहें. बल्कि मैंने आपको सेंटेंस ही गलत फ्रेम करके बताया. कोशिश नहीं करना है कि हम लोग ना जाए, हमने कोशिश करनी है कि वी स्टे अबव द लाइन. We stay in a good feeling frequency. It is okay to dip down sometimes, but just catch yourself that no, universe is there with me, you know. He is definitely going to take care of everything that I want. So I must have this utter faith upon the universe, that universe is there with me. Like a friend, like a sibling, like a parent, he is always there with me. This is what very important is to keep patience. Otherwise, things do not get delivered. So यहाँ पर अगला थोड़ा सा पढ़िए मैम, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, छोड़ने का ना मन ही नहीं करता. यस मैम. Demonstrations often come at the 11th hour because man then lets go. That is, stops reasoning and infinite intelligence has a chance to work. Yes. Man's So let God dreary work for you, no? desires are answered drearily, and his impatient desires long delayed or violently fulfilled. Yes, ma'am. Just a For moment. example, Yeah, yes, ma'am. Just a moment. We will be able to read this much only. Thank you so much for reading so beautifully. I so love your diction and all. Thank you so much. So thank you, yeah. Priya ma'am, so much. थैंक यू. सो इसमें बताया हुआ है कि दिस इज अगेन कि व्हेन यू आर इम्पेशेंट अबाउट एनीथिंग, यूनिवर्स डजंट डिलीवर इट टू यू बिकॉज यू आर गेटिंग इम्पेशेंट. यू मस्ट वॉच योर सेल्फ, यू मस्ट वॉच योर कंडक्ट, है ना. आपको फास्ट रखा हुआ है, आपने आपको फास्ट रखा हुआ है. यू हैव प्रॉमिस दैट नो, आई नॉट बी एबल, आई वोंट बी ईटिंग एनीथिंग टुडे. ठीक है, आपने खाना नहीं खाना, लेकिन जैसे ही करवा चौथ का चांद निकला कि नहीं, चांद निकला कि नहीं, चांद, यू आर गेटिंग डेस्परेट अबाउट इट. दैट इज द डेस्परेशन. When you have this faith, द चांद तो निकलना ही है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, चांद तो निकलना ही, चांद ने तो निकलना ही है अपने टाइम पे, है ना. वो थोड़ा सा टाइम, तो वो पेशेंस आप कितना रख पा रहे हो, आपकी फीलिंग फ्रिक्वेंसी कैसी रह रही है, तो आपका जो 11th आवर में आपका कंडक्ट कैसा है ना. आपको बहुत टाइम, जैसे मान लो आपको बहुत टाइम हो गया, मैम हमेशा बोलती है ना, यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स यू व्हेन यू आर एट द राइट स्टेज, यू नो, व्हेन यू आर राइपेंड इनफ टू गेट दैट.
आप उतने पक चुके हो कि आप उस चीज को हजम कर पाओ। अदरवाइज तो हजम, आप छोटे बच्चे को अगर आप बादाम खिला दोगे तो वो हजम नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी में वो बादाम का टुकड़ा पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। इन्फेंट की बात कर रही हूँ, इन्फेंट की जो 6 मंथ्स का बेबी होता है ना, जस्ट सपोज एक मेरी फ्रेंड का बेटा था, उसको काजू बहुत पसंद थे, तो जब भी घर पे आता था तो मुझे लगता था कि मैं दे देती हूँ उसको, उसको पसंद है तो वो खा लेगा। बट उसकी मॉम यानी कि मेरी फ्रेंड उसको मुझे बोलती थी कि मत दे प्रिया, ये पता है पूरा का पूरा वो वैसे का वैसा निकाल देता है। तो उस काजू का जो वो भी प्रोटीन है या जो भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे ना, फिर अगर आप उसको च्यू नहीं कर रहे हो अच्छे से, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो द सेम वे, जब यू आर एबल टू डाइजेस्ट दैट सक्सेस, यूनिवर्स विल गिव इट टू यू, but before that it won't give you. You have to have that power within you. You have to have that capability कि हाँ अब ये चीज मेरे पास आ गई है, और वो ये चीज अब मेरे पास आ गई, उस चीज की मेरे पास होना तो चाहिए कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो उतना होना चाहिए कि मैं उस काजू को डाइजेस्ट कर पाऊं प्रॉपरली. So this is the thing, when you'll be ready, universe will give it to you. It's always like that. So have perseverance, universe will definitely give everything to you. You just have to need perseverance. Perseverance का मतलब खाली patience नहीं होता है. Perseverance का मतलब होता है patience while following and keeping yourselves in good feeling frequency for your dreams, for your desires. If you are looking for a job, or if you are suffering from some disease and you want to eradicate that from your life, you will do that, but you need to be persevere. You need to observe perseverance to that extent. When you'll be ready, universe will be giving it to you. This is what very beautiful. Thank you so much everyone for listening to me. Thank you so much for joining every day without fail, and thank you to each and every one of you. Thank you to all the YouTube users of ours. Thank you for liking the text, that is the content, liking each and every content, and following us and sharing the videos. Thank you so much. You all are very important for us. All of you are very important for us, and you are walking the path of this. Now this is the path of success actually, because when you know something, you are spreading that thing. अपने पास रखोगे ना तो वो चीज नहीं होता. दैट इज अगेन द फीलिंग ऑफ एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन, यू हैव दिस नॉलेज एंड यू आर एक्यूमुलेटिंग दैट. आपने अपने पास रख दिया, वो वैसे नहीं रहता, वो धीरे धीरे करके ना वो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा. डेप्रिसिएशन इज समथिंग दैट इज अगेन यूनिवर्स लॉ. यू आर कीपिंग दैट थिंग दैट गेट्स डेप्रिशिएटेड. डेप्रिशिएट, कार है, आपने कार खरीद कर रख ली है, आप उसको चला रहे हो, अगर आपने नहीं भी चलाया, वो गाड़ी आपके घर में वैसे की वैसे रखी भी हुई है, तो भी उसका वैल्यू कम हो जाता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज द नेचर. So when you spread it, when you give it to someone, you have no knowledge, when you spread it, then it will always appreciate, it won't depreciate then. Yeah, thank you so much for doing that appreciation in your life. Thank you for recommending us to people. Thank you for changing people life in that way. Thank you so